simple AC circuit containing resistor only. Resistor only. Let this is simple circuit and this is resistor and this is alternating source. Alternating source को हम इस तरह से represent करेंगे and this is the simple circuit and this is resistor R and this is current I and here this is alternating source. This figure shows a circuit containing AC source and this AC source is E equals E naught sin omega t and a resistor R and resistor of resistance is R. Such circuit is known as purely resistive circuit. This type of circuit is called purely resistive circuit. Okay. Now, and here this is AC source. If the current at time t is I, then we can apply Kirchhoff's loop law. So applying Kirchhoff's loop law, you can write E is equal to IR. That means you can write E naught sin omega t is equal to IR, and from this you can write I equals E naught by R and this is sin omega t and this value is constant E naught by R. तो इस कांस्टेंट को हम I naught ले सकते हैं and this is I naught sin omega t. तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि this is I equals I naught sin omega t. तो देखिए करंट एंड EMF both are in same phase. ये दोनों जो है सेम फेज में है एंड हियर I naught is E naught by R. दोनों जो है साइनोसोडल कर्व को, साइनोसोडल में भी साइन कर्व को ये फॉलो कर रहा है. साइनोसोडल मींस साइन कॉस बोथ. तो यहाँ पे देखिए दोनों जो है साइन कर्व को फॉलो कर रहा है. बोथ स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, सो यू कैन से बोथ EMF and current are in same phase for purely resistive circuit. Now AC circuit containing only capacitor. So this is your diagram. This is capacitor. This is I amount of current is passing through it and this is alternating source. तो ये आपके पास सर्किट हो गया. This circuit shows an AC source connected across a capacitor. The resistance of the circuit is assumed to be 0. Here resistance is 0 and such circuit is known as purely capacitive circuit. This type of circuit is called purely capacitive circuit. This is purely capacitive circuit. Suppose the charge on the capacitor is Q and current is I at time t. Any charge that goes through the wire accumulates on capacitor, so it is I equals, you can write dq dt, and so I is equal to I dt is equal to dq, you can write. Here using Kirchhoff's law you can write E equals Q by C, and here EMF is E naught sin omega t. ये EMF है एंड EMF को हम क्या करते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये विल गेट E naught sin omega t is equal to Q by C. Now from this expression you can find Q equals C E naught sin omega t, and from this expression Q you can differentiate it. तो इसको differentiate करेंगे you will get current. तो I equals, you can write dq dt
तो जो कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं, ई नॉट सी, एंड साइन का डिफरेंशिएशन दिस इज कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी चेन रूल से ओमेगा, तो ये आपके पास आ गया एक्सप्रेशन ई नॉट ई सी ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी. This is the expression for your current. From this expression, here expression is I equals, this is E naught omega c and this is cos omega t. Now this is constant and let this constant is I naught and this is cos omega t. That means here current and your EMF both are perpendicular to each other. Here this expression holds cos component and this is here sine, and both are perpendicular to each other. That means here both are in not same phase. Phase difference is here pi by 2. That means here I naught is E naught omega c. So you can write omega E naught is equal to I naught by omega c. AC circuit containing only an inductor. तो देखते हैं कि जब सिंपल एसी सर्किट में केवल इंडक्टर लगा हो तो क्या होगा. दिस इज योर इंडक्टर, ये इंडक्टर का सिंबल हो गया और इसको हम एसी सर्किट में इस तरह से ज्वाइन करते हैं. दिस इज करंट एंड दिस इज योर एसी सोर्स. ये आपका एसी सोर्स है और ये कुछ इस तरह से आपका एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है. And the EMF of AC source is E, and which is equal to E naught sin omega t. That means here figure shows an inductor connected to an AC source. Such circuit is known as purely inductive circuit. This circuit is known as purely inductive circuit. Okay. Now induced EMF across the inductor is your minus L di dt. This is induced EMF. Induced EMF across the inductor. Across the इंडक्टर. ओके. इंडक्टर ठीक कैपेसिटर की तरह होता है, उसी के सिमिलर होता है, लेकिन ये मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है और कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है. तो हम यहाँ पर किरचॉफ्स लूप लॉ लगाते हैं एंड किरचॉफ्स लूप लॉ लगाकर हम लिख सकते हैं यहाँ पर दिस इज E इज इक्वल टू, यू कैन राइट L di dt using Kirchhoff's law. Using Kirchhoff's law. अब देखिए यहाँ पे E क्या है. E is here E naught sin omega t, और इसको भी हम एक तरफ ले आते हैं. दिस इज माइनस L di dt is equal to 0. L is the inductance of this inductor. इस इंडक्टर के लिए ये L इंडक्टेंस है. अब इसको हम di dt एक तरफ करते हैं तो दिस इज E नॉट साइन ओमेगा t इज इक्वल टू L di dt. दैट मीन्स di dt is equal to E नॉट by L sin ओमेगा t. दिस इज योर एक्सप्रेशन. तो हम लिख सकते हैं di dt इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. अब इसको क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं एक तरफ लाकर. तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज डी आई एंड दिस इज ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी एंड दिस इज हियर डी टी. नाउ डू इंटीग्रेशन. तो डी आई का इंटीग्रेशन हम आई लिखेंगे एंड हियर जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं. दिस इज आई और इसको हम लिख लेते हैं ई नॉट बाई एल. तो साइन के लिए इंटीग्रेशन हो गया आपका माइनस कॉस ओमेगा टी एंड डिवाइडेड बाई ओमेगा.
सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप भी कर सकते हैं इसको। तो आई इज इक्वल टू योर माइनस ई नॉट बाई एल ओमेगा and this is cos omega t. Okay, this is the expression. Now your term is here I is equal to, after integration, I equals minus e naught omega l and this is cos omega t. तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि cos माइनस cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस पाई बाई टू, साइन थीटा माइनस पाई बाई टू यू कैन राइट। दैट मीन्स हियर आपके पास जो एक्सप्रेशन होगा ये होगा, दिस इज ई नॉट ओमेगा एल एंड दिस इज साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास यही आई नॉट है, दिस इज आई नॉट, दैट मीन्स पीक करंट एंड दिस इज ई नॉट बाई ओमेगा एल। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज आई नॉट और ये जो है आपका रिएक्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज एक्स एल इज इक्वल्स टू ओमेगा into L. This is the inductance and it plays the role of effective resistance. It plays the role of effective resistance. ये भी एक तरह का रेसिस्टेंस ही है ड्यू टू इंडक्टर। इंडक्टर के आ जाने से यहाँ पर जो इस सर्किट में जो रेसिस्टेंस काम कर रहा है वो आपका इफेक्टिव रेसिस्टेंस है, दैट इज एक्स एल, और इसको हम लोग ओमेगा एल से डिनोट कर रहे हैं। और सिमिलरली कैपेसिटर के केस में हम लोग उसको एक्स सी लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग एक्स एल लिखेंगे, और प्योर रेसिस्टिव सर्किट के केस में एक्स आर वहाँ पर हमारे पास क्या था, सिंपली आर। एक्स एल हमारे पास क्या है, दिस इज ओमेगा एल एंड एक्स सी इज इक्वल टू 1 by omega c, 1 by omega c. So this is the effective resistance. This is effective resistance in different simple AC circuit. तो हम लोग देख रहे हैं तीन तरह के AC सर्किट में बात किए। ये तब है जब हमारे पास क्या है, दिस इज प्योर रेसिस्टिव सर्किट, दिस इज प्योर इंडक्टिव सर्किट, दिस इज प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो यहाँ हम लोग कंपैरिजन देखते हैं, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो ये देखिए हमारा सर्किट डायग्राम है, दिस इज हियर रेसिस्टर, इस रेसिस्टर के लिए लिखेंगे आर, और यहाँ पे ईएमएफ दिस इज ई इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी। इस केस में भी दिस इज ई, ये आपका कैपेसिटर है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं Q इज इक्वल्स टू सी वी, तो V इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा Q बाई सी, और ये EMF इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगेन हियर दिस इज इंडक्टर L, और ये EMF यहाँ पे E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम लोग बात कर चुके हैं कि इंडक्टर भी एक तरह का अरेंजमेंट है जिसमें हम लोग मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करते हैं। एंड हियर कैपेसिटर भी एक तरह का अरेंजमेंट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करते हैं। और यहाँ पर ये आपके पास रेसिस्टर है। तो तीनों केस में ये हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कुछ न कुछ आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और उसी पोटेंशियल ड्रॉप को हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर कि दिस इज द ग्राफ बिटवीन ईएमएफ एंड करंट। तो हमारे पास यहाँ जो करंट है I इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो कि ईएमएफ का इक्वेशन है दिस इज ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखिए बोथ आर इन साइन, ये साइन के टर्म्स में है दोनों, तो इसीलिए हम यहाँ पे बोलेंगे फेज डिफरेंस जो है ये क्या है, फाई इक्वल्स टू 0, और जेड जो है वो
इसको हम यहाँ पर इफेक्टिव रेसिस्टेंस बोल रहे हैं, जिसको इम्पिडेंस भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, ये दोनों को दिखा रहा है कि दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो दोनों के बीच एंगल जो है, फेजर डायग्राम ये है, इसको कहेंगे हम लोग फेजर डायग्राम। दिस इज फेजर डायग्राम। और ये इसका किरचॉफ्स इक्वेशन है। किरचॉफ्स लॉ से हम लोग लिखेंगे E इक्वल्स आई आर। तो यहाँ लिख सकते हैं E नॉट साइन ओमेगा टी आर आई, और इससे हम रिलेशन निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग इंडिविजुअली निकाले भी है रिलेशन। और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी EMF आपके पास क्या है, E इज इक्वल टू EMF इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये EMF का इक्वेशन है। और जो करंट का इक्वेशन आया है उसमें देखिए पाई बाई 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए पाई बाई 2 का डिफरेंस है। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज फेजर डायग्राम। यहाँ देखिए पाई बाई 2, तो दैट मीन्स कि EMF और करंट जो होगा पाई बाई 2 यूनिट से क्या होगा, वो दोनों में डिफरेंस होगा। तो ये आपका फेजर डायग्राम है। ये फेजर डायग्राम अगर बोला जाए तो ये आप बनाएंगे इसको। और जेड यहाँ पर, जिसको हम इफेक्टिव रेसिस्टेंस कहते हैं, 1/ओमेगा c है। और यहाँ पर इसका किरचॉफ्स जो इक्वेशन लूप लॉ लिखेंगे, ये किरचॉफ्स लूप लॉ है, ये इसके लिए किरचॉफ्स लूप लॉ है। और इसी लूप लॉ से आप डिराइव कर सकते हैं रिलेशन को। यहाँ पर हमको डिफ्रेंशिएट करके रिलेशन निकालना होगा करंट का। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, dq/dt करंट होता है, तो करंट के साथ ये रिलेशन आ गया। हियर ये आपके पास इंडक्टर है, तो इंडक्टर के केस में भी हम लोग ने यहाँ पर EMF जो है E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी है। तो E इक्वल्स टू, दिस इज E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर देखिए कैलकुलेट करने के बाद ये हमारा किरचॉफ्स लूप लॉ है। तो किरचॉफ्स लूप लॉ लगाने के बाद यहाँ हमको इंटीग्रेशन करना होगा। इससे I आप निकालेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, तो आपके पास ये जो फेजर डायग्राम आएगा, ये देखिए -π/2 यूनिट से दोनों का डिफरेंस है। और ये देखिए ये ग्राफ जो है, साइन का ग्राफ जो है, ये EMF का ग्राफ है, और ये माइनस आपका कॉस का ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ माइनस कॉस। तो ये देखिए कॉस का ग्राफ नेगेटिव, ऐसे डॉटेड लाइन से जो दिखाया गया है, दिस इज करंट, ये करंट है, दिस इज करंट। तो यहाँ पर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं और तीनों को आप इसको मेमोराइज कर लेंगे। और इस पे हम लोग इंडिविजुअल क्वेश्चन आगे देखते हैं कि जब प्योरली रेसिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो तो क्या होगा। इसके बाद हम लोग एक दूसरे को मर्ज करेंगे।